Hello, friends. Vivek Bajaj, co-founder, Stockage, Elon Markets. नमस्कार, कैसे हैं सब? सही चल रहा है? सही सही, वेरी गुड, वेरी गुड. Keep it on, keep the spirit on. We all will come out of it. Keep the spirit on. दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि फाइनेंशियल मार्केट में सक्सीड करने के लिए फाइनेंस क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं कि जरूरी नहीं है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा या एमबीए फाइनेंस होना पड़ेगा या सीएफए होना पड़ेगा. आप अगर किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप हिस्ट्री स्ट्रीम से आ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के आ रहे हैं, चाहे आपने कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी लिया है, तो भी शेयर बाजार एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, that anyone with any kind of background can actually establish himself or herself in stock market. So if you are not from finance background, don't worry about it. If you want to know how to succeed in market with non-finance background, here we are today. We have a guest who is absolutely from a non-finance background. दूर दूर तक उनका finance से कोई नाता नहीं था, except that obviously his family is from a specific community, जो आपको बाद में पता लगेगा, जहां पे finance शायद ब्लड में रहता है. बट nonetheless उसके अलावा भी फॉर्मल एजुकेशन finance में कभी नहीं रहा, और फॉर्मल एजुकेशन रहा something like microbiology. Can you guess? Someone who has a microbiology education now succeeding in stock market as a trader, as an analyst. Friends, today in my guest, I have a very good person, someone whom I admire, who has been associated with us. He is taking a lot of webinars with us, and people really, really like him. His style of teaching, his style of explaining, and his understanding of the subject is far, far superior than a lot of people in the industry. And he is quite a young chap. So may I call Mr. Gaurav Vissa to come and join for this conversation. Hi Vivek, how are you? All well, Gaurav. How are you today? I'm quite well. I'm quite well. Yeah, absolutely. So, we also recorded a video last week, but somehow that video didn't turn out well. So I'm so thankful to you that you agreed to record one more with me again. So thank you for this repeat of the recording. Thank you, Vivek. It's absolutely pleasure talking to you. I take it as an opportunity that I could get a chance to speak with you again. So I'm not complaining actually. You are a very humble person, and people are not complaining. People, I've never seen people complaining about you, because this is why you are so famous among people. So friends, people who don't know Gaurav, I would say that he's someone who has reached where he is today. He's working as a research head in a broking firm, and we're going to ask him about it, about his career journey. But before I ask him to talk about his career journey, uh, it's important for me to tell you that in Elon Markets, we keep on receiving recommendations from people that we want to hear him. He's a good guy, or he is a good girl, or can you please host a program of this person? Can you call this particular person for face to face? And Gaurav, you are one of the people. Lot of people called us and told that we want to hear from Gaurav. So here I am. I'm obliged. I'm actually obligated that I'm interacting with you, and I'm sure I'm going to learn a lot from you. I'm thankful to you and I'm thankful to all the people who have showered so much love upon me. Maybe I did not deserve so much, but I'm happy and I'm lucky to be surrounded by such lovely people. Wow, fantastic. So Gaurav, before we go into more technical discussion, और दोस्तों आज धमाका होने वाला है. आज बहुत ही मतलब हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि एक पटाखा की तरह है. तो जिसके हाथ सही लग जाए ना, तो मजा बहुत आता है उसको यूज करके. तो गौरव इज स्पेशलिस्ट ऑन पटाखा इंडिकेटर्स. मैंने गौरव को रिक्वेस्ट किया कि आप एक इंडिकेटर पे पूरा डीप जाके हमको ऐसा सिखाइए कि कल से हम उसको यूज करें. और आप चिंता मत करिए, पैसा बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, वो आपके ऊपर हमने नहीं डाल रखा है. पर आप सिखा ऐसा दीजिए कि बस मजा आ जाए सीख के. तो गौरव, बिफोर वी गो into the technical discussion about that indicator or whatever study you want to share with us.
थोड़ा आपके बारे में सबको जानना चाहेंगे। मैंने आपका क्वालिफिकेशन आई थिंक मैंने सही बताया था, माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से आप है? जी बिल्कुल। और फिर से आपका शुक्रिया। जैसे मैं लास्ट टाइम आपको शुक्रिया किया था कि आपने मेरे मार्क्स नहीं पूछे, सो आई एम अगेन utterly thankful to you for that, that you don't ask how much percentage did I get. But yes, I did microbiology and इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। हमेशा मेरा इंटरेस्ट इंक्लाइन था टूवर्ड्स साइंस और करना था, तो मेरे दिमाग में दो चीजें क्लियर थी, एक मुझे साइंस करना है, एक मुझे मैथमेटिक्स नहीं करना है। So my choices were my choices were limited. So in the first year of graduation, at least in Mumbai side में, you have this PCM, physics, chemistry, mathematics. Or in the college where I studied, there was one more option, that was physics, chemistry, microbiology. So at that time I did not have any idea. कुछ इल्म भी नहीं था मेरा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है. But it was an obvious choice for me because physics, chemistry, maths नहीं लेना था. So I stumbled upon microbiology. My interest was more in chemistry, but as the studies progressed, my inclination I found it more interesting. क्योंकि एक when we study about molecular structure, it means that you need to study very deep. आज मैं दिखने के लिए इतना बड़ा भले दिख जाऊं आपको gigantic, right? But at molecular level we both are same, right? So वो जो चीज है कि इतनी छोटी जो चीज दिखती नहीं है आंख से, वो आपको इस तरह से रन कर रही है आपकी बॉडी को. So that was something overwhelming for me, and I think that has also helped me in studying the markets, because I love to see how things function rather than taking something on the face value. So that is how I stumbled upon microbiology, and फिर मेरा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे उसमें काफी बढ़ चुका था. देखा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैसे एक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो बायोलॉजी को उन्होंने मार्केट के साथ में एनालॉजी के रूप में ड्रॉ किया और उस थॉट प्रोसेस को उन्होंने मार्केट में अप्लाई किया और उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी व्हिच यू हैव ड्रॉन, एंड आई टोटली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग दैट मार्केट is actually components of microbiology or molecules which we talk about. और जो जितना उस मॉलिक्यूलर लेवल पे मार्केट को देख लेता है, वो इतना इतना उससे प्यार करने लग जाता है, इतनी दोस्ती कर लेता है मार्केट से कि मार्केट खुद उसको फिर पैसे दे के जाता है कि ये ले तेरे लिए गिफ्ट। जी बिल्कुल. चलिए, और गौरव एक बात बताइए कि आर यू बाय एनी चांस इज योर फैमिली इनटू स्टॉक मार्केट आल्सो? एक्चुअली नो, बट बीइंग अ मारवाड़ी थोड़ा तो ये खून में होता ही है, ये विरासत हो जाती है, राइट? दैट्स अ लाइनेज. बट वी यूज्ड टू ट्रेड इन शेयर्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तब मैं ट्रेड वगैरह किया करता था. दैट वाज अ वेरी गुड टाइम. 2006 के अराउंड का अगर मैं कहूँ, फ्रॉम 2004 2005 से लेकर 2007 तक, इट वाज अ ड्रीम रन. एनीबडी एंड एवरीबडी कुड जस्ट कम इनटू द मार्केट्स एंड मेक मनी. यू रिमेंबर दैट ड्रीम रन क्वाइट वेल, राइट? सो वो एक था कि चलो पैसा बन रहा है, आ रहा है. बड़े लेवल पे नहीं था, लेकिन अपने हिसाब से कॉलेज लेवल में बोस्ट करने के लिए काफी अच्छा लग रहा था. सो उतना ही सिर्फ एक बैकग्राउंड मेरा था, आप कह सकते हैं, बट देयर वाज नो स्टडी बिहाइंड इट, राइट? तब क्या था कि कोई स्टॉक अगर मोमेंटम में है, उसमें आप घुस जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा. जब उसके बाद में कॉलेज से बाहर निकला, 2008 हुआ, उसके बाद में जब खुद स्टडी किया, देन आई रियलाइज्ड कि मोमेंटम जो है वो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ट्रेंड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड एंड मोमेंटम. ट्रेंड आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा. मोमेंटम कैसा है कि आज है कल नहीं है, फिर परसों आ सकता है. सो आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग एनी बेट्स. आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग एनी एंट्रीज इन स्टॉक्स और एनीथिंग व्हिच हैज बीन इन द मोमेंटम. जिसका प्रॉपर ट्रेंड दिख रहा है, प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स दिख रहे हैं, प्रॉपर चार्टिंग दिख रहा है, उसी में जाइए. क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी रिटेल में लॉस होता है, वो इसके लिए है कि आज का, फॉर एग्जाम्पल आज की बात करो तो आज एचडीएफसी बैंक मोमेंटम में था, राइट? सो चार्ट आपको कुछ और बोल दे कि आपको ये लेवल से बाय करना है, मे बी यू वुड हैव स्किप्ड इट, दैट इज स्टिल फाइन. देखिए मोमेंटम में है, चलो आपने 1070 पे ले लिया. आप कल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वापस वो आगे 1035 1040 होता है, आप बोलोगे यार ये तो इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था, राइट? तो ये कैसे वीक हो गया अचानक से? सो क्या होता है कि आपसे मोमेंटम इज फ्रॉम प्राइस ए टू प्राइस बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी. वो जो जाने का तरीका है वो मोमेंटम है. हाउ इट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट डिफाइंस द ट्रेंड. कैरेक्टरिस्टिक है, हायर हाई हायर लो बन रहा है. तो उस तरह से क्या है, मैं समझ पाया कि डिफरेंस दोनों में क्या चीज है. ये अगर डिफरेंस कोई इंसान समझ ले, तो मैं समझता हूँ 50% जो उसकी इश्यूज हैं ट्रेडिंग के, वो सॉल्व हो जाएंगे. मुझे लगता है गौरव बहुत
और मैं आपको बनाने वाला हूँ प्रेजेंटर, और थोड़ा समय इस टॉपिक पे अपने बिताते हैं, और आप एग्जांपल्स भी काफी अच्छा दिए हैं। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड एंड मोमेंटम, अगर आप चार्ट के थ्रू हमको दिखा पाए, बिकॉज ये जनरल मिस्टेक है। मैं कहूंगा मैं भी इस मिस्टेक में भागीदारी हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेंड रीजन बताते हैं मोमेंटम जनरेट होने का, और लेकिन ये नहीं समझते कि मोमेंटम एक शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, और वापस से ट्रेंड को देखना जरूरी है कि क्या हम उस पर कंटिन्यू करें कि नहीं करें। तो एक बार आप एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके डिफरेंस बताइए। So I hope my screen is visible to you. यस यस, वी कैन सी योर स्क्रीन, या राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले लार्जर चार्ट से दिखाऊंगा। देखिए, आप कोई चीज सीखना चाहेंगे ना, हमेशा उसको वीकली चार्ट्स पे या डेली चार्ट्स पे उसको देखिए। उससे क्या होगा, आपको सीखने में इजी होगा। इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। वेन एवर यू लर्न समथिंग, थिंक ऑफ इट लाइक यूर ड्राइविंग अ कार। जब आप कार सीखते हो तो आप हाईवे पे या जो खुली सड़क है, राइट, उस पर आप चलाने की कोशिश करते हो ताकि आपको आजू बाजू को दिक्कत हो रहा ना है। आप एक बार उसमें परिपक्व हो जाए, वंस यू आर कंफर्टेबल, देन यू एंटर इनटू ट्रैफिक जोन। सो दिस इज सेम। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपने यहाँ पे कोई भी प्राइस पर ने बाय किया, ठीक है, सो आई ड्रॉ सम एरोज यहाँ पे, राइट। सो अगर आप मुंह, ये वाला मुंह, या अगर मैं टोटल आपको फुल दिखाऊं यहाँ से, सपोज कि आपने ये, ठीक है, अगर इसको आप देखो तो दिस इज जस्ट अ मोमेंटम कि प्राइस जो है एक पॉइंट से मे बी फ्रॉम लेवल्स ऑफ 19,000 इट वेंट टू लेवल्स ऑफ 22,000, राइट। एक एक मूवमेंट में आपको ऊपर जाने मिल गया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक, राइट। ये कैसे मूव हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ वन साइड एक स्ट्रॉन्ग वी शेप का मूव आ गया, राइट। देयर इज अ वर्टिकल रैली सॉर्ट ऑफ दैट वी सॉ इन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर आप करते हो, बिकॉज देयर लॉट ऑफ ड्रॉडाउन्स, अगर मैं सपोज यहाँ पे भी बाय करता हूँ जहाँ पे आपके लेवल्स है 21,338, राइट। उसके बाद में देखोगे फिर एक बार नीचे आया था, वही लेवल्स पे आया था, फिर वापस ऊपर गया। तो ये कैसा है ना कि मोमेंटम में आप जब भी एंटर करोगे तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि यहाँ पे आप अटक जाओ। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिलता है। लेट मी जस्ट शो यू अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ दैट, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस ब्लैक कलर हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ यू कैन सी फॉर बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स, इट गेव अ ब्रेकआउट, एक कैंडल आया था। उसके बाद में देखो देयर वाज सच अ लार्ज कैंडल, वी कॉल दिस एज अ बेरिश एंगल्फिंग। रेजिस्टेंस पे आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप मूव बेरिश एंगल्फिंग बना है, दिस अ बिग थिंग, राइट। तो उसके बाद में आप देखो ना, उसके तुरंत नीचे आ गया। तो आप क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो मोमेंटम में लिया था, ये तो नीचे आ गया। वहां से अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद में तो 700-800 पर नीचे आ गया बैंक निफ्टी। पीपल विल क्रिप दैट, अरे इट वाज इन मोमेंटम, ये था वो था, राइट। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, right, that what is the difference between a momentum and a trend. Now let us see, if you can see this horizontal line I have drawn at the lower levels, right, यहाँ पे, यहाँ से अगर एक ट्रेंड शुरू हुआ, एक प्राइस एक्शन शुरू हुआ, राइट, एक ऊपर गया प्राइस, स्टार्टेड गोइंग अप, देन आई विल ड्रॉ अ सर्कल टू मार्क द हाई पॉइंट इट मेड। So this brownish circle that you can see, it made a high over there, right? Then it again witnessed a dip. So this dip came towards this Marubozu kind of candle over here, right, at around 19,500, and now it again went up. It made a high at levels of say whatever 22,300, 400, somewhere around that, right? This particular. So what basically what we are saying, it has formed a higher high, it has formed a higher low. अगर आप देखोगे पहला ये लो था, so let me draw black color arrow से it becomes clear to you। ये आपका पहला लो पॉइंट था इस मूव का, राइट, दिस ब्लू कलर एरो। दूसरा आपका लो था यहाँ पे बना, राइट, राइट यहाँ पे। तो पहला जो लो था वो आपका बना तकरीबन 17,200, ठीक है। दूसरा जो आपका लो बना वो है 19,500। तो जो लो दूसरा वाला बना, जो लेटेस्ट लो बना है, वो ऊपरी लेवल्स पे है, राइट। इट इज एट द हायर लेवल कंपेयर टू द प्रीवियस लो। सिमिलरली जो राइट पहला हाई बना, ये हाई पॉइंट था तकरीबन 21,800 का, राइट। The second high that it made, it was around levels of 22,500 rounded, right, 22,500 के करीब इसका बना था हाई। तो यहाँ पे अगर हाई भी देखोगे तो जो हाई है वो भी ऊपरी लेवल से बना है। तो ये जो है दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेंड, जहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस एक्शन जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ प्राइमरी ट्रेंड, राइट। ये पहला मूव है, पार्ट ऑफ क्लियर ट्रेंड। कैसे होता है, दिस इज अ प्राइमरी ट्रेंड जो पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से वी सी सम अमाउंट ऑफ करेक्शन, वी कॉल दिस रिट्रेसमेंट। ये आप 38%, 50%, 60% जितना भी आपको बोलना है, रिट्रेसमेंट होता है, राइट।
This is called the secondary trend as per Dow theory. And then what it says कि then the prices go in direction of a primary trend. तो primary trend ऊपर था, तो ये वापस ऊपर गया. So now it is forming higher high, higher low. तो जब तक ये 19,500 के नीचे मूव नहीं देता है, राइट, 19,500 नीचे मूव नहीं देता है, ये इंडेक्स जो है फिलहाल अप ट्रेंड में ही रहेगा. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ पे बाय करो और नीचे स्टॉप लॉस रखो. What I am saying, then you can probably draw a trend line, right? क्या मुझे पता है कि कहाँ पे बाय करना है, राइट? सो अब देख लो, आज का जो लो था तकरीबन 21,000 हम लोग राउंडेड पकड़ते हैं. दैट वाज नियर द ट्रेंड लाइन. जो हमने ट्रेंड ड्रॉ किया यहाँ पे, वो ट्रेंड लाइन के नजदीक ही था. वहां से आपको 400 पॉइंट का मूव सेम डे में देखने मिल चुका, राइट? सो आपने कहीं पे भी, यू डिड नॉट बाय एट एनी रैंडम पॉइंट, यू बॉट एट दिस पर्टिकुलर एरिया व्हिच वाज नियर योर ट्रेंड लाइन. आपने ट्रेंड लाइन के बाजू में बाय किया. दिस लेट मी मेक इट अ ब्लैक कलर सर्कल, अ ब्लू कलर सर्कल विद अ ब्लैक बैकग्राउंड, राइट? सो यहाँ पे मैंने बाय किया. आई डिड नॉट बाय रैंडमली. अगर मैं और कहीं पे बाय करता, इसके दौरान कहीं पे भी और बाय करता, दैट वुड बी रैंडम. कि मैं एक मोमेंटम में है बैंक निफ्टी, तो मैंने उस पर चढ़ गया, मैं चलती ट्रेन में चढ़ गया, राइट? बट आपको नहीं पता चलती ट्रेन में जब चढ़ता, आपको नहीं पता उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है. क्या वो आपके स्टेशन पे रुकेगी क्या? यू डोंट नो दैट, राइट? वी हैव टू बी इन कंट्रोल. सिमिलरली, not that the market lets you control it, but at least we know, हमारे रिस्क हमको पता है, कहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे हमारा लॉस है. तो जब भी अगर अगर ये 21,000 के नीचे क्लोज होता ऑन डेली चार्ज, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा कि चलो एक बार थोड़ा सा इश्यू आ रहा है. लेकिन एज पर ट्रेंड लाइन मेरा इमीडिएट सपोर्ट 21,000 स्पॉट के आसपास है, और वहां के आसपास अगर आता है तो मैं बाय करूंगा एंड आई विल प्ले. तो अभी अगर ये होल्ड होता है तो मे बी वी कैन अगेन अटेम्प्ट move towards level of 22,000. So this is how you can play. So if I show you chart on Nifty, it will be even more clear, and you will be amazed the kind of move it has shown so far. Right. So let me just clear everything else. So Vivek, you can see from this falling arrow. यहाँ पे अगर आप देखोगे, there was a very steep fall, right? A waterfall kind of move. कि नीचे सीधा गिरता चालू हो गया, गिरते रहा, राइट? फिर यहाँ पे इसने एक बनाया लो, राइट, अराउंड लेवल ऑफ 7,500. ठीक है, जो 7,511 लो था उसको राउंड ऑफ करते हैं 7,500. ठीक है. अभी डाउन ट्रेंड में हम क्या कहते हैं, जैसे अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनता है, वैसे डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनता है. ठीक है. उसके बाद में इसने ये वाला पहला हाई बनाया, ठीक है, हियर अराउंड 8,800 के आसपास में, विच इज फाइन. नहीं, 9,000 के पास में, ये ठीक है. ये भी लोअर हाई है, पिछले हाई से लोअर लेवल पे है. लेकिन जो चीज यहाँ पे कान खड़े कर दे या आपके रेडर पे आ जाए, वो है ये वाला लेवल अराउंड 8,000. बिकॉज उसके बाद में जो लो बना वो 8,000 का था. तो निफ्टी ने पहला लो मारा 7,500 का, फिर एक हाई मारा, वो भी ठीक था, लोअर हाई बना है. अब निफ्टी को अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसको लोअर लो बनाना चाहिए था, राइट? तो हमको 7,500 के नीचे जाना चाहिए था, चाहे 50 पॉइंट ही सही, लेकिन 7,500 के नीचे जाना चाहिए था. बट हुआ क्या, हम लोगों ने 8,000 पे सपोर्ट लिया और हम लोग वहां पे सस्टेन हो गए, राइट? तो दैट वाज द अर्ली साइन कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो फिलहाल एक बार आपको चेंज हो रहा है. उसके बाद में अगर आप देखोगे कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन आपको आया कि जब इसने ये प्रीवियस हाई तोड़ा जो इसने बनाया 9,000 का, राइट, 9,000 9,050 का जब हाई तोड़ा, तब कंफर्मेशन आ गया, राइट? क्योंकि एक नया हाई बन चुका है. जो लोअर हाई था, अब जो हाई है वो हायर हाई बना है. तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंस, कि यहाँ पे आप देखो ये एक हाई बना, फिर इसने एक ये लो बनाया, राइट, 8,800 का लो बना. उसके बाद में इसने फिर एक हाई बनाया, राइट, फिर इसने फिर एक लो बनाया, और ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, राइट? हायर हाई हायर लो बना. उसके बाद में इसने फिर एक नया हाई बनाया, तकरीबन 10,550 का जो हाई था निफ्टी ने वो बनाया, राइट? अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी कि आई विल बाय बट नॉट रैंडमली. इसके को एक लो आ जाना दो, इट कैन बी 10,000 9,900, बट वी नो कि अगर 9,500 के ऊपर जो भी लो बनता है, राइट, तो ये अभी भी अप ट्रेंड में रहेगा. सो पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट मच लोअर लेवल्स, निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, ये आएगी, आप देख लीजिए. सिंपल चार्ट मैंने आपसे शेयर किया है. लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट एंड यू कैन सी दिस इज अ सिंपल चार्ट, राइट? यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, कंफर्मेशन आया, और ये हायर हाई हायर लो बन रहा है.
सो जब मैं बाय करूंगा तो आई विल इधर बाय, जब यहाँ पे बनता इन दिस कैंडल, लेट मी जस्ट शो कि मैं ट्रेड कहाँ पे लूंगा, कैसे लूंगा। सो अगर मैंने सब कुछ मिस कर दिया है सपोज, और यहाँ पे अगर निफ्टी आया है, तो या तो मैं इस कैंडल का, जो मारुति काइंड ऑफ कैंडल है, उसका जब हाई क्रॉस होगा, राइट, ये वाला इसके ऊपर, तब बाय करूंगा मैं, राइट, बिकॉज आई नो कि हायर हाई हायर लो बना ट्रेंड में ही है, और आई कैन इवन बाय अबाउट दिस, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे अगर मैं बाय करता भी हूँ तो मेरा नया हाई बनना तो तय है। अगर डाउ थियरी है, बराबर हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो अगर लो जो है वो हायर पॉइंट पे बना है, तो अगला हाई है वो भी हायर पॉइंट पे बनना चाहिए। अब तक निफ्टी जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, राइट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एंगल्फिंग हुआ है, करेक्शन आ सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर करेक्शन आता है और 9500 के ऊपर ही लो बनता है, तो हम जो है अगली बार जब वापस ऊपर आएगा, तो वो जो प्रीवियस हाई था 10,555 का, उसको एक बार ये ऊपर जाएगा, भले 50 पॉइंट ही सही, लेकिन ये ऊपर जाएगा। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेंड वीजा-वी मोमेंटम। तो यहाँ से जो मैं आपको ब्लू एरिया दिखा दूं, ब्लू बॉक्स बना दूंगा मैं, राइट, ये दिस इज जस्ट मोमेंटम। प्राइस जो है एक पॉइंट से फ्रॉम 9100 प्राइस वेंट टू 9600, राइट, इन अ वर्टिकल फैशन। यहाँ पे एट टाइम्स यू विल मेक मनी, एट टाइम्स यू विल नॉट मेक मनी, राइट, बिकॉज यू डू नॉट नो, आपने बाय किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोमेंट में पैसा नहीं बनेगा, बट आई डू नॉट नो कि यहाँ पे आगे जाके क्या करेगा। बट एटलीस्ट इफ आई एम फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न, जहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा है, आई नो कहाँ पे मेरे व्यू के निगेशंस होंगे, कहाँ पे मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। इतना गिरने के बाद में भी मैं जान रहा था कि निफ्टी जो है यहाँ पे हायर लो बना है, तो अभी मैं नहीं समझता यहाँ पे नया लो मारेगा निफ्टी। जब बहुत से लोग बोले थे कि 7500 टूटेगा या नहीं टूटेगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था। यहाँ पे एक एबी इक्वल सी डी हार्मोनिक पैटर्न भी थी। मैंने 9550 पे भी जब ये लो बना था 300 पॉइंट गैप डाउन, तभी भी मैंने कहा था यहाँ से बाउंस आपको देखने मिलेगा, वी कैन मेक अ फ्रेश इंटरमीडिएट हाई। जो प्रीवियस हाई था वो 10,328 का था, तो थोड़ा ही ऊपर से, लेकिन एक बार ऊपर जाना बहुत चांस है उसका, वैसे ही हुआ। तो सिंपल स्ट्रेटेजीज में अगर आप काम करते हो, आप प्रॉपर्ली उसको अप्लाई करते हो, तो आपको काफी अच्छा उसके अंदर आपको रिटर्न देखने मिल सकते हैं, काफी अच्छे उसके आपको रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो मैं मल्टीपल चीजें फॉलो करता हूँ, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप, ये तो मैंने डेली चार्ट दिखाया, यू कैन चेक फॉर एज लो एज 5 मिनट चार्ट ऑल्सो। आप इंट्राडे प्लेयर हो, 5 मिनट्स में चेक करो, जब तक ये ही एक्चुअली मैं हायर यही हाई आपसे हायर लो। रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडिल में आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था, अगर आप कम अवधि का एक चार्ट अगर दिखा पाए और सेम कंसेप्ट को अगर कोई इंट्राडे कर रहा है या कोई मे बी एक दिन का पोजीशन के लिए काम कर रहा है, तो कैसे दिखा सकते हैं? तो मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, जो मैंने ट्रेड अभी तो नहीं, लेकिन कल परसों मैंने जो कुछ ट्रेड्स लिए थे, मैंने वो लेवल्स पे ही लिए थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितना भी कॉन्वर्सेशन होता है एक्सपर्ट के साथ में, ये बहुत रैंडम और नॉन स्क्रिप्टेड होता है। तो कई बार इनके लिए भी हो जाता है कि मैं अचानक से क्वेश्चन पूछ दिया और उसका आंसर इनको देना पड़ता है, but they are always very generous, and because they are genuine people also, they typically land up answering the question exactly the way I want them. So चलिए गौरव दिखाइए, ये देखिए 15 आप मिनट का बहुत चार्ट ज्यादा, का। ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट्स में ले सकते हो, 15 मिनट्स में ले सकते हो। आई थिंक 15 मिनट्स इज स्टिल गुड इनफ फॉर बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए। 15 मिनट का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने अगेन आई शोन यू एक एरो ओनली। देखिए कोई भी स्टडी के लिए यू नीड टू हैव अ ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे मैं बार बार एरो क्यों दिखा रहा हूँ, यू नीड टू एम्फेसाइज ऑन दैट। एक डाउन ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग फॉल। अब क्या होता है विवेक, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, देर आर ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड। अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हो, उसमें कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, राइट, तो आप अगर उसका आवरली चार्ट देखोगे, तो वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए वो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, राइट। तो देर आर ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड। हम लोग को हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से या लोएस्ट पॉइंट से नहीं पकड़ना है, मुझे एक ट्रेंड चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने एरो दिखाया, ये ट्रेंड है, ठीक ठाक सा ट्रेंड है, राइट, फ्रॉम लेवल्स ऑफ 22,400 से अगर देखा जाए, तो वापस 21,000 के करीब आया था ये, राइट। सो मेरे लिए इट इज फाइन। 1200 पॉइंट्स 1300 पॉइंट्स का एक डिप आपको देखने मिला है, आई विल प्ले अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हमने देखा कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग करेक्शन दैट वी सॉ। आफ्टर दैट इट मेड अ लो ओवर हियर। नाउ वी डू नॉट नो कि लो कब बनेगा, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट एट दिस पॉइंट। लो पे सिर्फ हम लोग सपने में बाय कर सकते हैं लो पे, और सपने में ही सेल कर सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे, राइट। बट इन रियल वर्ल्ड इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे 21,000 के आसपास में एक लो बना, 20,900, राइट। सो दैट इज अगेन फाइन। देन व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर, इसने एक हाई बनाया यहाँ पे,
सो ये भी बराबर है, ये जो हाई है ये प्रीवियस हाई से नीचे ही है। अगर मैं इसको भी हाई पकड़ूं तो ये इससे नीचे ही है, तो अभी तक तो ये बराबर ही चल रहा था। अब डाउ थ्योरी के हिसाब से इसको नया लो मानना चाहिए था 20,900 के नीचे, चाहे 20-25 पॉइंट से, लेकिन इसको 20,900 के नीचे जाना चाहिए था। इट डिड नॉट हैपन, राइट? इट मेड अ लो ओवर हियर, राइट? यहाँ पे इसने लो बनाए और उसके बाद में यहाँ पे जब लो बनाया तब आप जब लो बोल रहे हैं तो आप कैंडल का लो पकड़ते हैं या आप समझ गया। आप बोल रहे हैं कि जब मैं कोई लो पकड़ता हूँ तो मैं एक कैंडल का लो पकड़ता हूँ, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं जूम कर सकूं, ठीक है, सो आप देख लो, आई ड्रॉ एन एरो, ठीक है, यहाँ पे लो बना, मैंने एरो बना दिया है, ठीक है, वहां पे उसका लो बना। अब मुझे नहीं पता कि यार यही लो रहने वाला है, ये लो नहीं रहेगा, वी डू नॉट नो दैट, राइट? क्योंकि आज ये 15 मिनट बने, अगले 15 मिनट के अंदर शायद ये अलग लो बना दे। लेकिन अगर आप देखो व्हाट इज द काइंड ऑफ कैंडल ओवर हियर, इट्स मोर ऑफ अ दोजी सॉर्ट ऑफ पैटर्न दैट इज फाउंड ओवर हियर, राइट? अगर आप देखोगे तो दोजी टाइप ऑफ पैटर्न बना है। सो व्हाट इज दोजी काइंड ऑफ पैटर्न? देयर इज एन इंडिशियन। यहाँ पे बेयर्स को भी ज्यादा आइडिया नहीं है, बुल्स को भी ज्यादा आइडिया नहीं है, राइट? सो दिस गिव्स यू एटलीस्ट एन आइडिया कि यहाँ पे बेयर्स जो है वो बहुत अग्रेसिव हो, वैसा शायद ना हो, शायद, राइट? सो आई विल नॉट एक्ट ओवर हियर। एक बार इसके ऊपर कैंडल पे क्लोज अगर आ जाता है तब हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। सो इसके बाद का कैंडल देखें तो इट गेव अ क्लोज एट द हायर लेवल्स। ये सेकंड एरो जो है स्लाइटली एलोंगेटेड एरो, वहां पे अगर आप देखोगे तो उसका जो हाई क्लोजिंग पॉइंट है वो प्रीवियस वाले से हाई है। तो नाउ एटलीस्ट वी हैव सम आइडिया, नॉट द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन विल कम व्हेन इट मेक्स अ फ्रेश हाई। ये वाले सर्कल से ऊपर जो हाई बनेगा वो एक कंफर्मेशन होगा, बट आई डू नॉट वांट टू वेट टिल दैट पॉइंट। आई एम इंट्राडे प्लेयर, मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग अलग कर सकता हूँ, राइट? सो वंस इट गिव्स अ क्लोज एट द हायर लेवल्स, उसके बाद में मैं बाय कर लूंगा, राइट? सो आई विल नॉट बाय हियर at levels of 21,150, 160. Maybe I'll buy at levels of 21,000 to 40 to 50. मैंने वहां पे बाय किया, राइट? My stop loss will be 21,000, राइट? 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज आता है 21,000 के नीचे, उसके नीचे चला भी गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि फिर एक लोअर लो बन रहा है। तो मेरा ये जो स्टडी है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। लेकिन डाउट थ्योरी क्या कहती है, या हम लोग जो भी सीखे हैं पिछले 10 मिनट में, वो हमने क्या चर्चा की है, दैट इफ इट इज मेकिंग अ हायर लो, the next step is to form a higher high, right? So the previous high was 21,601, right? So if this low holds, it should make a fresh high. So it can go to levels of at least 21,605. Previous high was 21,602. 2-4 पॉइंट ऊपर जाएगा as per Dow theory, right? If not more. So that was what we were hoping for. We bought at levels of 21,250. You keep a stop loss of 21,050. On the upside, you have a 21,610, 615 kind of levels, and वो यहाँ पे आया, right? यहाँ पे आप देखोगे तो एक 670 का हाई मारा, right? फिर इसने वापस यहाँ पे एक हाई मार के नीचे आया, right? It made a higher high, then it again came down and it made a low, राइट? अब ये लो भी हाई है, मतलब हायर लो बन रहा है यहाँ पे भी, राइट? तो अगेन आई थिंक कैसा हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे, सो 3 कैंडल्स, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, इट टुक सपोर्ट यहाँ पे, देन देयर वाज कंसोलिडेशन इन नेक्स्ट 2 कैंडल्स, राइट? सो इट वाज अगेन शोइंग कि अगर ये दिस इज होल्डिंग प्रॉपर्ली, सो आप एकदम लो लेवल्स पे नहीं, यहाँ पे आपने बाय नहीं किया 21,400 पे, maybe you bought at levels of 21,500, ठीक है, राइट? You keep a stop loss of 21,400. अगर हायर लो बना है, नेक्स्ट एम शुड बी व्हाट? अ फ्रेश हाई, इंटरमीडिएट हाई, लाइफ टाइम हाई नहीं, फ्रेश इंटरमीडिएट हाई। तो इसका जो हाई था दैट वाज 21,690, तो इसका 21,700, 21,695 थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। and see what happened, it made a high of 21,760, right? So this is how, then it again started falling down, and the moment it gave a move below this, that was our, I'll draw another arrow, so this one, the moment it gave a move below this, that was the confirmation के अब जो अभी तक जो हायर हाई हायर लो बन रहा था, यहाँ पे थोड़ा चेंज आ रहा है, अब ये लोअर लो बन रहा है, राइट? प्रीवियस लो से ये नया लो ये बन रहा है। So till the time I was quite happy with that, so I will not buy over here, right?
एज पर दिस स्टडी। कोई और स्टडी के हिसाब से करना है आपको, आप कर सकते हो। कोई मूविंग एवरेज है, इचिमोको है, या और कोई स्टडी है, सुपर ट्रेंड यूज किया आपने, आरएसए यूज किया, एनी स्टडी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अच्छा मूव आपको देखने मिल गया यहाँ के लिए, राइट। मैं ये नहीं कहता हूँ आपने 21,000 पे खरीद के 21,700 पे बेचा है। मैं आपको मल्टीपल एंट्रीज दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे, अगर आपने पहला मिस किया तो आप दूसरा कब एंट्री कर सकते हो, वो मिस किया तो वापस आप कब कर सकते हो। ये वाले में जहाँ पे अगर मैं एरो चेंज कर दूं, इफ चेंजेस टू probably if I make it black, this black arrow, it made a lower low, प्रीवियस लो को तोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा। नाउ आई वेट कि क्या यहाँ पे अभी यहाँ पे नया ट्रेंड बन रहा है क्या, लोअर लो लोअर हाई। तो जैसे अभी यहाँ पे पहला ये हाई बना, दिस वाज द हाई, उसके बाद में जो नेक्स्ट हाई बना यहाँ पे, राइट, ये आपका लोअर हाई बना। और अगर आप लो देखोगे तो यहाँ पे आपके आके लो बना था, राइट। सो नाउ यू नो ये लोअर, अभी यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। सो आई विल प्ले फॉर द लोअर लेवल्स, और देखो वहां से नीचे भी आना चालू कर दिया, राइट। सो बेसिकली दिस इज हाउ आई लाइक टू प्ले थिंग्स आउट, राइट। दिस इज वन स्ट्रेटेजी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी, बट दिस इज ऑल्सो सिंपल, वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि ट्रेंड पकड़ने में, राइट। ट्रेंड इन द सेंस मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको इतना लंबा सा एक फॉलिंग एरो दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट है। पीपल वांट कि मुझे बड़ा कोई ट्रेंड मिले तो ही मैं करूंगा, बट यहाँ पे अगर आप मूव देख रहे हो 22,500 से लेके 21,000 तक का अगर मूव की बात करें, अगर 6-7% का मूव आ रहा है तो मैं उसके रिट्रेसमेंट्स के लिए प्ले करूंगा। मे बी फॉर 6% फॉल है तो मैं 3% 4% के लिए प्ले करूंगा, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि मैं 6% का ट्रेंड नीचे मिला मुझे, अब यहाँ से तो 15% का रिटर्न मिलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, एटलीस्ट ऑन दिस पार्ट। इट कैन गो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉसिबल होगा ही नहीं कि ऊपर जाएगा नहीं उसके ऊपर, बट देयर हैज टू बी सम अदर कंफर्मेशंस। एज पर दिस स्टडी वी नो के यहाँ पे इतना मिल सकता है। सो अगर मुझे दिन का 1% मिल रहा है कोई अच्छी ट्रेड में, आई एम हैप्पी ना। 1% इज नॉट बैड इन निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर 1% मिल रहा है, दैट इज नॉट बैड एट ऑल। सो दिस इज वन स्ट्रेटेजी दैट वन कैन incorporate in their trading style. Simple strategy to understand, but it has been working quite well. And in a scenario where you have a very steep correction, इसमें काफी अच्छा काम करता है। और ये आप किसी को डिलीवरी ट्रेडर है कि मुझे 3-4 दिन के लिए रखना है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकिंग एट 4 hourly charts, looking at our daily charts. If somebody is into positional कि मैं 3 महीना 6 महीना साल भर रखना है, तो वो वीकली चार्ट्स देके कर सकते हैं, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका फोकस क्या है। मेरा फोकस इंट्राडे है, so maybe hourly chart, half hourly chart is what my focus will be. If you are into delivery trading, then your focus will be 4 hourly chart and daily chart. If you are a positional player that you want to hold for 6 months, 12 months, or maybe 18 months, then your focus will be weekly chart or monthly chart for that matter. So you need to be clear कि मेरा basis क्या है entering into a trade. Things become very clear after that. Right, right. ये जो आपने कहा कि इंट्राडे 15 मिनट कैंडल यूज करके आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, या इसको डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। बट इसमें मेरे को अभी भी एक छोटा सा कंफ्यूजन रह गया है। एंट्री एग्जिट मेरे को अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। इफ यू कैन जस्ट टेक वन स्मॉल एग्जांपल, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द एंट्री एंड एग्जिट इन दीस काइंड ऑफ ट्रेंड्स? So let us take this example. ये वाला जो हमने पहले यहाँ पे कहा, so let me make a box that it is differentiated from other arrows that we have drawn, right? So this blue area, right? So in the first, at the lowest level, we cannot buy, right? We cannot buy at the lowest level possible. यहाँ पे what was the kind of candle that was formed at the support area? The kind of candle that was formed was a doji kind of candle, right? So far the trend was strong, and when there's a doji candle that is formed, आप hammer बोल दो, आप doji बोल दो, या और कोई price pattern आप देख लो, जहाँ पे आपको मालूम पड़ सकता है कि थोड़ा जो strength है trend का वो weak हो रहा है, in the sense कि it is not a confirmation. यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था उतना ही अग्रेसिवली अभी डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है, बिकॉज कैंडल जो नीचे से एक अच्छा रिकवरी आपको देखने मिला है, लेकिन इंडिशियन है, बुल्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बेयर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट मोर इम्पोर्टेंट इज द फॉल। आफ्टर अ फॉल बेयर्स आर शोइंग सम काइंड ऑफ एग्जॉस्शन, थोड़ा थकावट दिख रही है बुल बेयर्स के लिए, राइट। बुल्स अभी तक हावी नहीं हुए, तो वी विल स्किप दैट कैंडल, वी विल बाय वंस इट गिव्स अ क्लोज अबाउट दैट, not even moving above that, a close above that. So इसका close अगर कैंडल का जो close था that was 21,170,
इसका जो क्लोज था दैट वाज 21,219, सो लेट्स से 21,220, ठीक है। सो आई विल नॉट बाय एट 21,170, मैं 50 पॉइंट ऊपर ही बाय कर लूंगा, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हो गया ना, उसके बाद में बाय कर लूंगा मैं उसके अगले कैंडल में, राइट। माय स्टॉप लॉस विल बी दिस लाइन 21,090 और मे बी 21,000 आप बोल दो, राइट। 21,100 का ये सपोर्ट है, ये 21,091 का है, 21,091। तो इसके नीचे चला गया मतलब आप गलत होगा ना कि अभी नया लो बन रहा है। हम लोग यहाँ पे कैंडल्स देख के ये अज्यूम करें कि यहाँ पे अभी ये जो लो है ये इसका लो बन चुका है, यहाँ से ऊपर आ सकता है। दैट इज आवर अजम्पशन। आवर कंफर्मेशन विल कम जब ये पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर प्राइस चला जाएगा, राइट। इसके ऊपर जाएगा तो कंफर्मेशन आएगा कि यहाँ पे ये बना है, बट दिस इज द अर्ली साइन दैट द ट्रेंड इज चेंजिंग, राइट। सो इट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड हायर लो, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं। सो नाउ इट शुड फॉर्म अ हायर हाई। तो मैं आई विल नॉट बाय 21,170, आई विल बाय 21,220 और 10-20 रुपए ऊपर और खरीदना, आप ऊपर भी ले लिया। प्लस स्टॉप लॉस इज 21,091। सो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 100-125 पॉइंट का है, राइट। And what we are saying that if it has formed a higher low, right? If it has formed a higher low, the idea says, the study says that it should now make a fresh intermediate high, a fresh intermediate high. So the previous high was 21,602, right? तो इसको 21,602 से ऊपर जाना है, 21,604, 605 और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी आवर लेवल। 21,602 के ऊपर जाएगा ये। So we buy at 21,220, keep a stop loss of 120 points, and we play for target price of 400 points. So that is how I will be taking my entries over here above levels of 21,220, and my targets would be 21,605. उसके ऊपर चला गया, आप ट्रेलिंग कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर दूसरी चीज आ जाती है, but your immediate attention should be for making a fresh intermediate. Okay, got it. Now it's very. And the same theory can be applied in any candle duration. 15 मिनट है, चाहे 30 मिनट है, चाहे 2 घंटा कोई यूज कर रहा है, तो सेम थ्योरी। आप 5 मिनट में यूज कर सकते हो, आप 15 मिनट में कर सकते हो, आप 1 घंटा डेली, मंथली, क्वार्टरली, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टडी रिमेन्स द सेम, राइट। बस आपको ये देखना है कि आपका फोकस एरिया क्या है। आप इंट्राडे प्लेयर हो लेकिन आप वीकली चार्ट देखोगे तो आपको उतना काम नहीं आएगा, या आप पोजिशनल प्लेयर हो लेकिन आप आवरली चार्ट देखो तो आपको उतना काम में नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा फोकस एरिया क्या है, उस हिसाब से मैं चीज को देखूंगा मैं। और जैसे मैंने कहा, यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग, देयर आर ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स। आपको मंथली चार्ट में अप ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन आवरली चार्ट में वो डाउन ट्रेंड में रह सकता है। वेरी मच पॉसिबल ना, जैसे मैंने कहा कि रिट्रेसमेंट आता है, दैट रिट्रेसमेंट सेल्फ कैन बी अ डाउन ट्रेंड, राइट। सो आप उसको मत देखो कि मंथली चार्ट पे तो ये है, आवरली पे ये दिख रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मैं आवरली चार्ट ही देख रहा हूँ, मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ, आई विल नॉट लुक एट द मंथली चार्ट, but I will just play for that particular fall, only that particular fall or that particular rise. I'll play for that. करेक्ट, पॉइंट। अच्छा गौरव, आपने हमारे साथ एक वेबिनार किया था इचुमोको पे, तो मैं चाह रहा था कि उसके बारे में भी आप अगर कुछ बेसिक्स एक बार बता पाए कि आप वो कैसे यूज करते हैं और वो टूल एग्जैक्टली है क्या। बिकॉज मैं काफी सुन रहा हूँ लोगों से आजकल इचुमोको लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका यूटिलिटी वैल्यू क्या, अगर बेसिक्स अगर आप कुछ बता सकते हैं अभी तो। देखिए, इचिमोकू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इट्स नॉट जस्ट एन इंडिकेटर, राइट, इट्स एन एंटायर स्टडी इन इटसेल्फ। बहुत सारी चीजें हैं इचिमोकू के अंदर। बेसिक्स क्या कहता है इचिमोकू का, आप अगर एक बार चार्ट को देखोगे, व्हेन यू ग्लांस एट अ चार्ट, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ट्रेंड क्या है, राइट। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, राइट। हम लोग एंट्री पॉइंट्स को डिसाइड कर लेंगे कि मैं कहाँ पे एंट्री लूंगा, बट जब तक ट्रेंड क्या है, अगर अप ट्रेंड है तो मैं बाय करूंगा, डाउन ट्रेंड है तो मैं शॉर्ट करूंगा, राइट। ये बेसिस होना चाहिए ट्रेड का। सो आपको एक बार आप चार्ट देखोगे तो मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, राइट। इट गिव्स यू अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। That is the whole idea of Ichimoku. It's a momentum indicator. It is only for capturing momentum, right? At times, we not give you exact targets. कि यहाँ से अगर आपको बाय सिग्नल मिला तो exact targets क्या होंगे? At times आपको शायद नहीं मिले. There are different studies, different models जहाँ पे आप कर सकते हो. Advanced study अगर आप जाते हो तो वहाँ पे अलग-अलग price theory है, wave theory है और advancement. वहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या price आ सकता है. But अगर मैं basics रखूँ, because that is where you can still make huge amount of money. अच्छा सक्सेस रेशियो आपको मिल सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। उसके लिए अगर मैं कहूँ, इट्स लाइक अ ट्रेंड फॉलोइंग। आप उसको आपने अगर बाय किया है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो एंड यू आर राइडिंग द ट्रेंड। आपने शॉर्ट किया, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो एंड यू आर राइडिंग द डाउन ट्रेंड, राइडिंग द फॉल।
So that is how. So this is investing.com की वेबसाइट. ट्रेडिंग व्यू ले लो, आप कोई भी वेबसाइट ले लो. In this particular website, on the left hand side you can see there are panes. There's a pane, right? The left hand side में there's a vertical pane. अलग अलग उसमें ऑप्शन है. That is different tools. On the right side, अप में अगर आप देखोगे ऑन द अप साइड एक मेन्यू बार है जहाँ पे यू हैव योर निफ्टी बैंक, यहाँ पे लिखा है यू हैव योर टाइम फ्रेम 15 मिनट, एक दिन, एक महीना, राइट. फिर कैंडल्स कौन सा है. अब यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे लिखा है इंडिकेटर्स, जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करो, राइट, इंडिकेटर्स को. फिर वहां पे आप टाइप कर दो इचिमोकू, राइट. ये आया, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है. जैसे आप सिलेक्ट करोगे आप यू विल बी एबल टू यूज इचिमोकू. So this is how Ichimoku will look like, ठीक है. So we will discuss couple of concepts. वहाँ पे हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. As I said, कि जब आप सीखते हो, आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम में सीखोगे तो आपको समझ में इजी आएगा, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम में आपको जायरेशंस बहुत मिलेंगे, राइट. अ डेली चार्ट विल बी डिफरेंट कंपेयर टू 1 मिनट चार्ट, राइट. आप अगर मूवमेंट देखोगे तो. सो फॉर यू, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, always look for daily or weekly chart. So we will take an example as it is, एक करके देखेंगे. So there are various components of Ichimoku, ठीक है. So let us just say when I say सर के glance करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा how is the trend. So this is what we call as Kumo. Kumo is Japanese word for cloud, right. What it says that if the price is above Kumo, it is expected to be an uptrend. ट्रेंड उसका पॉजिटिव रहेगा. इफ इट इज बिलो कुमो, बिलो योर क्लाउड एरिया, देन द ट्रेंड इज एक्सपेक्ट टू बी वीक, टू बी नेगेटिव, राइट. ये चीज है, राइट. जस्ट लुक एंड यू विल अंडरस्टैंड ये कहाँ पे है. सो अगर आप देख लो यहाँ पे, इफ आई रिमूव इचिमोकू, दिस इज जस्ट अ प्राइस एक्शन आपको लिख रहा है, राइट. कुछ है नहीं, कहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, वो लिखना पड़ेगा. लेकिन जैसे ही मैं इचिमोकू लगाता हूँ, यहाँ पर ही मेरा आज सिग्नल के देखो यहाँ पे क्लाउड के नीचे है, अब ट्रेंड वीक है. कितना वीक है वो ये नहीं बताएगा, लेकिन वीक है एटलीस्ट वो आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट. सो इट गिव्स यू दैट फैसिलिटी, that advantage that you can see, you can try to find out how the trend is, right. Second, let us talk about the components in brief. जैसे मैंने आपसे कहा that you need to understand इंडेक्स के आपको कैसे इंडिकेटर कैसे कोई स्टडी काम करती है, तब आप अपना खुद का एक सिस्टम बना सकते हो, राइट. यहाँ पे मैंने सबको दे दिया क्लाउड पे चल के आप सेल करो, बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम इट विल वर्क. कब ये काम नहीं करता है, क्यों ये काम नहीं करता है, क्यों ये काम करता है, राइट. कौन से चांस ज्यादा है काम करने, कौन से इंस्टेंसेस पे द प्रायोरिटी ऑफ द सेटअप वर्किंग विल बी हाई. You need to understand that. So, इसके लिए let us just see a small brief about the component. There are various components. First is your this blue color line, right? We call this as a Tenkan, which is nothing but your average of last 9 candles, right? Highest high and lowest low. So let us take example from here. You go to date range, ठीक है. ये आज का कैंडल है, राइट. इतना ये जो रेंज है लास्ट 9 कैंडल्स का, राइट, 9 पीरियड्स. बिकॉज दिस इज अ डेली चार्ट. अगर आप आवली पे देखोगे तो आवली पे आपको अलग दिख जाएगा. आवली पे 9 आवर्स का रहेगा, 9 डे. सो इट इज 9 बार्स, 9 पीरियड, 9 कैंडल्स, राइट. तो ये जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट, राइट. इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या था इसका निफ्टी बैंक का 22,480, राइट. इसका लोएस्ट पॉइंट ये लेवल था 19,978. सो यू ऐड बोथ 19,978 प्लस 22,480 डिवाइड बाय 2, वो आपको जो प्राइस पॉइंट दिखेगा वहां पे प्लॉट आपका होगा टेंकन, राइट, 9 डे का. ओके. सो नाउ उसके बाद आता है कि जो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इचिमोकू. ये मैजेंटा कलर की जो लाइन है, रानी कलर, मैजेंटा कलर, रेडिश कलर आप जो देख रहे हो, इसका अगेन द कैलकुलेशंस आर सेम एज व्हाट वाज फॉर टेंकन. यहाँ पे इट इज एवरेज ऑफ लास्ट 26 बार्स, राइट. तो टेंकन के लिए हमारा 9 डे का पीरियड था. यहाँ पे जो पीरियड है इट इज 26 बार्स. पिछले 26 बार्स का हाईएस्ट हाई, लोएस्ट लो,
ठीक है। तो ऐसा हाईएस्ट हाई तो अगेन सेम ही रहेगा, विच वाज 22,480, ठीक है। इसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो आपका ये रहेगा, फॉर एग्जांपल ये मे बी 18,180, 18,800, राइट। सो यू डिवाइड, 800, हाँ। यू ऐड 18,800 प्लस 22,480 डिवाइड बाय 2, वहां पे आपको दिख जाएगा प्लॉट होता हुआ किजन, राइट। बाद में आपका आता है चीकू स्पेन। ये जो ग्रे कलर की लाइन है, आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर की लाइन होगी, लैगिंग लाइन बोलते हैं इसको। ये आपको कुछ नहीं है, आपकी जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे आज ये 21,368 पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक, राइट। तो ये जो प्राइस है, ये प्लॉट होगा 26 दिन पहले, 26 दिन पीछे जाके प्लॉट होगा, राइट। 26 डेज बैक इट इज प्लॉटेड। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, आज का प्राइस है प्लॉटेड 26 डेज बैक, right? Then you have what we call as span A, span B. Span A, span B जो है, span A है वो 26 दिन का आपका एवरेज है टेंकन किजुन का, प्लॉटेड 26 डेज अहेड। तो अगर आप देखोगे, ये आप एरिया देखो, आपको ये ज्यादा दिख रहा है, राइट। आपका कैंडल्स तो यहाँ पे अगर रुक गई है, दिस एरो, दिस इज आज का कैंडल तो यहाँ पे है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है मौका आपको दिख रहा है, ये आप देखो कि आपको आगे भी जाके क्लाउड बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये क्यों है? क्योंकि ये 26 दिन बाद प्लॉट होता है, 26 days ahead from here. Like for Chiku span, you have 26 days back. This is for 26 days forward. So, what is the significance? It basically tells you what is the expectation कि आपका जो sentiment है, is it turning towards positive? So अगर आप देखोगे red से blue हो रहा है, so we call this as a Kumo twist. There's a change in sentiment. Not necessarily कि आप ऊपर जाएगा ही जाएगा, but at least it gives you an indication कि यहाँ से sentiment positive हो सकता है या sentiment negative हो सकता है, right? So it gives you an idea of that, and they act as a support. जैसे मैंने कहा, अगर क्लाउड के नीचे चला गया तो आपका ट्रेंड बदल रहा है, क्लाउड के ऊपर चला गया तो आपका ट्रेंड बदल रहा है। तो क्लाउड्स आर योर फाइनल सपोर्ट एरिया। जो आपका आखिरी सपोर्ट है या आखिरी रेजिस्टेंस जो है वो क्लाउड को होता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो लास्ट रेजिस्टेंस इज योर क्लाउड, ऊपर से नीचे आ रहा है देन योर लास्ट सपोर्ट इज योर क्लाउड एरिया, राइट। सो दिस इज बेसिकली देयर। एंड फॉर अस, मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताऊं फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत समय मेरे साथ गुजारना पड़ेगा, यू विल गेट बोर्ड। लेकिन जो इमीडिएट बेसिस पे अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा, एक आप किजुन पे देखो, राइट, विच इज योर रेडिश लाइन, मेजेंटा लाइन। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, this and your cloud I have already shown you, right. That will give you strong trades, highly profitable, high conversion trades majority of the times, right. So now let us see how do I look at things, right. So this Kijun, it has a tendency to remain flat. Imagine that आप एक 9 EMA को देख रहे हो स्टॉक के अंदर और आप 100 EMA को देख रहे हो। So 9 EMA will be very fast, right? एक ऊपर नीचे करता रहेगा, it's very sensitive. 100 EMA is not going to be as sensitive. तो वहां पे आपको काफी टाइम पे प्राइस जो है वो स्टेबल देखने मिल सकता है आपको। So as I said, कि अगर हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो ऑफ 26 डेज अगर वो है तो काफी टाइम तक जो है ना ये फ्लैट हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे किचन था, लेट मी ड्रॉ एन एरो, राइट, लुक एट दिस एरिया, किचन वाज फ्लैट, आप देख रहे हो इट इज फ्लैट, आपकी ब्लू लाइन ऊपर नीचे हो रही है बट अब किचन इज फ्लैट। तो जब भी ये फ्लैट होता है इट हैज अ टेंडेंसी टू पुल प्राइस टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आप देखो, इफ आई कैन रीपोजिशन द एरो, यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो प्राइसेस फ्रॉम हियर इट वेंट टुवर्ड्स किचन, राइट। यहाँ पे वापस इफ आई ड्रॉ एन एरो, किचन वाज फ्लैट, प्राइसेस आया एंड वापस इट केम टुवर्ड्स योर किचन, राइट। सो किचन हैज अ मैग्नेटिक इम्पैक्ट। So what I generally prefer कि जब भी prices Kijun के आसपास आता है, right? Whenever prices come to a Kijun, flat Kijun, there is a temporary reversal that you can see. Temporary reversal. It may turn out to be a new trend, but temporary reversal आपको देखने का मिलेगा 80% of the times। अगर आप जैसे यहाँ पे देखो, right? यहाँ पे price नीचे आया, it took support exactly the Kijun area, right? So I'll buy, यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है so I will buy, ये दिस लेवल इज 19,450, ठीक है। तो लोवेस्ट लेवल पे नोबडी कैन बाय, बट अगर ये होल्ड कर रहा है, राइट, प्राइसेस नीचे आया इंट्राडे लेवल पे भी,
बट मुझे पता है डेली चार्ट्स पे देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इसका फ्लैट कीजन है, तो आई विल से अनलेस प्राइसेस क्लोज बिलो 19,500 19,450 उसके नीचे क्लोज नहीं आएगा, माय ट्रेंड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो आई विल बी अ बायर इन दिस इन सच केसेस एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर देयर वाज अ कंसोलिडेशन और ऊपर गया 19,500 से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला गया 21,000 तक, उसके बाद और ऊपर गया, जैसे डिफरेंट स्टडी, राइट, बट एटलीस्ट इट विल टेल यू कि यहाँ पे ये एक बार रुक जाएगा। लेट अस लेकिन लुक एट, आपने ये बात कही थी कि अल्टीमेटली अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो ये वापस नीचे आना चाहिए। आ रहा है ना, देखा यहाँ पे अगर देखा जाए दिस इज फ्लैट की जोन, राइट, यहाँ फ्लैट है, तो आप देखो ऊपर राइट, से 22,450 से एक बार नीचे टुवर्ड्स इटसेल्फ हैज सी, अभी तो और फ्लैट है, सो इट कैन टेक सम टाइम, इट कैन अगेन पुल बैक, इट हैज स्टार्टेड पुलिंग ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे 22,500 वाला राउंडेड ऑफ 22,500 वाला बैंक निफ्टी नीचे आके 21,000 तक आके चला गया ना, 20,900 का एक लो मार के आया वो, तो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स किजुल, राइट, बट ये हो सकता है ना कि जब ये किजुल ऊपर चला जाए, यू नेवर नो, हाँ, जैसे अब अगर देखा जाए किजुन कब ऊपर जाएगा, लेट अस सी कि किजुन ऊपर कब जाएगा, राइट, सो वी विल अभी से 26 दिन का देखते हैं पीछे का, ठीक, यहाँ पे ये 26 दिन का जो पीरियड है, इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका है 17,105 का, हाईएस्ट पॉइंट 22,500 राउंडेड ऑफ, ठीक है, तो अगर 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, राइट, एंड इफ यू गो अहेड बाय 3-4 डेज, हम लोग अगले हफ्ते की बात की जाए, अगले मंडे की बात की जाए, ठीक है, अगले मंडे के लिए आपका जो 26 दिन होंगे वो ये वाले होंगे, राइट, दिस इज गोइंग टू बी 26 कैंडल्स फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ पे जब लो देखोगे आप, तो यहाँ पे जो आपका लोएस्ट पॉइंट है दैट इज 18,820, इट इज नॉट 17,105, राइट, सो योर एवरेज विल गो अप, आपकी एवरेज ऊपर चली जाएगी, राइट, 22,500 प्लस 18,800 डिवाइड बाय 2, आपका वो एवरेज जो है इट इज गोइंग टू बी हायर देन today's average which is 22,500 plus 17,100 divided by 2, so ये जो किजन है ये 3-4 दिन के बाद में ऊपर जाना चालू कर देगा, राइट, इट विल नो लॉन्गर रिमेन फ्लैट, सो इफ इट इज नॉट फ्लैट एनीमोर देन जरूरी नहीं कि आपको पुल मैग्नेटिक पुल आपको देखने मिलेगा, इट विल पुल एज लॉन्ग एज इट इज फ्लैट, as long as it is flat, so after 3-4 days it will start tilting higher, तब इसका मैग्नेटिक इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा, so either बैंक निफ्टी कैन fall in next 3-4 days significantly, और if the Kijun goes up तो फिर जो आपका डर है, करेक्शन का डर जो है वो आपका एक बार के लिए कम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा ट्रेलिंग मैकेनिज्म बन गया। This is a fantastic trailing stop loss. It's a fantastic trailing stop loss for intraday players, for momentum players, for positional players जो 1-2 साल 5 साल रखना चाहते हैं, जब तक आपका प्राइसेस किजुन के नीचे क्लोज नहीं करेगा आप उसको बाय करके रखिए, there's not going to be any harm. Now let us look at different intraday examples, right? Let us now, this is what I have shown you in daily charts. Why? So that you understand how it functions. Now let us take example of today, right? Today I had sent a tweet that Bank Nifty आपको support देखने मिल सकता है around 21,000 spot, right? So what was the reason for that? We have seen a very strong correction. Now you will be amazed to see where exactly it halted, right? So आपको यहाँ से फॉल देखने मिला है, राइट, ठीक है, योर किजुन वाज फ्लैट, दिस इज 4 hourly चार्ट, ओके, ठीक है, कहाँ पे इसने पहली बार सपोर्ट लिया, इट टुक फर्स्ट सपोर्ट एट लेवल्स ऑफ 21,000, ठीक है, वहीं पे इस 20,990 में राउंडेड ऑफ कर रहा हूँ 21,000 का, एक बार बाउंस दे दिया, ठीक है, यहाँ से बाउंस आ गया, टुडे इट अगेन केम डाउन और लो जो था वापस इसके बाजू में ही बन रहा था, right, it made a low of 21,026, Kijun was 21,000, so that was the reason I said कि अगर 21,000 hold करता है, right, then we can see a bounce back, right, so from 21,050 to around levels of 21,420 430 जो भी इसका मूव आया था वहां तक का आप देख सकते हैं, मूव आपको ऑलरेडी देखने मिल चुका है, so as long as we don't have a close 4 hourly close below 21,000 spot levels, ये फिलहाल सपोर्ट लेते बाउंस करते रहेगा, so this is one way of looking at things. Now your question should be कि मैंने 4 घंटे का क्यों देखा, because are you aware of pivot points?
आपने पिवट पॉइंट्स के बारे में सुना रहेगा, राइट? S1 S2 S3 ये 2-3 सपोर्ट है, 2-3 रेजिस्टेंस है, राइट? करेक्ट करेक्ट, हाँ। मैंने क्यों इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया वो आप देखो। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि जो ट्रेडर्स हैं उनको दो चीजें देखनी चाहिए इचिमोकू के अंदर ट्रेड के लिए। वन इज किजुन, राइट? सेकेंड वाज कुमो, राइट? क्लाउड, राइट? सो लेट अस गो टू आवली चार्ट। अब आवली चार्ट में ये जो सपोर्ट है, दिस इज फाइनल सपोर्ट। इसके नीचे हम लोग कहेंगे कि एक बार जो आवली ट्रेंड है वो खराब हो रहा है, आवली ट्रेंड जो है वो खराब हो रहा है, राइट? अगर क्लाउड के नीचे जाए तो लुक, इट मेड अ लो ऑफ 21,000। सपोर्ट इसका कहाँ पे? 20,995, क्लाउड सपोर्ट एरिया। हमारा किजुन सपोर्ट एरिया क्या था? 20,992। ये सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? 20,990। तो आप समझिए दो अलग अलग सपोर्ट्स आपको एक ही प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज मोर कन्विंसिंग फॉर मी। अगर दो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स मेरे एक ही जगह पे आ रहे हैं, इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली द सेम कि वो 20,992 है तो ये भी उतना ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ना, इट्स नॉट वेरी फार, बट यू कैन सी दिस इज फ्लैट, राइट? अगर आप देखो, जैसे मैंने कहा कि ये फ्लैट रह सकता है, ये फ्लैट है, सपोर्ट है, राइट? ये सपोर्ट जो है इट इज कोइंसाइडिंग विद माय किजुन सपोर्ट ऑन 4 आवरली। सो दैट इज व्हाई दैट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप फिर 21 जगह पुट ऑप्शन देख लो कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो सपोर्ट आप देख लो, और कुछ आपको पैरामीटर्स देखना है देख लो। लेकिन यहाँ पे मेरा था, आई वॉज क्वाइट कन्विंस्ड के यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। और 400 पॉइंट का बाउंस एक दिन के अंदर, आई डोंट थिंक दैट इज बैड बाय एनी स्टैंडर्ड्स, राइट? और कहाँ पे जाके ये अटका? अगर सपोज मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, राइट, कहाँ पे जाके मैं अटका? ये अटका है एग्जैक्टली आपका किचन पे आके अटका एक बार, राइट? अब जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा अटकता रहेगा, अटकता रहेगा, राइट? बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट डिफरेंस राइट नाउ यहाँ पे, which is your 21,000 levels of 21,435 36 वाला कुछ तो है वो लेवल्स पे। सो आप देख सकते हो कैसे कोई ट्रेड ले सकता है। ये सेम चीज आप 15 मिनट में देख सकते हो, राइट? 15 मिनट के लिए आप वो अकॉर्डिंगली देखोगे। सपोज अगर 15 मिनट में मेरा किजन टूट रहा है तो देन आई विल लुक फॉर आवरली चार्ट, 30 मिनट्स आवरली चार्ट, राइट? सो लेट अस से कि मैंने सुबह सुबह क्या देखा, राइट? अभी तो मैं आपको हाइंडसाइड एनालिसिस बता सकता हूँ, यू कैन से दैट दिस इज हाइंडसाइड। तो लेट अस से 15 मिनट्स में। बट गौरव भाई, बात बताइए, जब ट्रेड एक ही ड्यूरेशन को देखना चाहिए हर बार ना? जैसा आपने कहा कि 4 घंटा देख लिया, फिर 1 घंटा देख लिया, अभी 5 मिनट, जनरली क्या देखना चाहिए? एक ही देखना चाहिए? मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, ठीक है? सो मैं अभी शुरुआत करूँ मॉर्निंग में, ठीक है? मॉर्निंग हमको गैप डाउन देखने मिल चुका था, राइट? वी हैड अ गैप डाउन। अब अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पे इट इज ट्रेडिंग बिलो क्लाउड, इट इज ट्रेडिंग बिलो किचन, सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है? यहाँ पे हमको कोई चीज दिख नहीं रही है, 15 मिनट के अंदर वी कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट? सो वी विल गो टू दी आवरली चार्ट। 15 मिनट मैंने देखा तो मैं अगला टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा, ठीक है? आवरली चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट नजदीक में आ रहा है, ठीक है? सपोर्ट जो है वो एक नजदीक में मेरे आ रहा है। सो एक मेरा वो हो गया। सो इवन ऑन दिस, सिर्फ अगर मैं ये चीज देख लूं, सिर्फ अगर मैं ये चीज देख लूं तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ कि मेरा एक क्लाउड सपोर्ट आ रहा है ये लेवल से, सो आई विल बाय, राइट? बट I always check one time or couple of time frames higher only to check कि यार यही डेटा पॉइंट्स पे कोई सपोर्ट आ रहा है क्या। मालूम पड़ा आगे जाके there is a very strong hurdle at higher levels पे, ठीक है? इचिमोकू में कैसा होता है विवेक भाई कि जो हायर टाइम फ्रेम है, 1 घंटे से ऊपर का जो टाइम फ्रेम है, 2 आवर्स 4 आवर्स, उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा, उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है? सो अगर मैं डेली इंटरडे में ही बिलीव कर रहा हूँ, शायद टेक हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर भी ये चेक करने के लिए कि नजदीक में तो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस नजदीक में तो नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं जानता हूँ मेरा रेजिस्टेंस जो है वो 21,600 पे मेरा दिख रहा है, विच इज स्टिल फाइन, ठीक है? मैं 4 घंटे में जाके देखा ओनली टू सी कहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस, कहाँ पे मेरा सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे मुझे क्या देखने मिला? सपोर्ट, मेरा सपोर्ट आ रहा है 20,990 पे, 20,992.9, राइट? 20,993 पे मेरा सपोर्ट आ रहा है। सो यहाँ पे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। Why this is interesting for me? Because this support 20,993 4 hours का, it is coinciding with my support on hourly charts also, right? So there are certain trades where you can do bigger quantity. अगर आपकी कैपेसिटी है कि मैं 10 लॉट कर सकता हूँ, लेकिन आप हर ट्रेड में 10 लॉट नहीं करोगे। You will wait for that particular trade जहाँ पे आपको कन्विक्शन है तो मैं वहां पे 10 लॉट की मेरी कैपेसिटी फुलफिल कर सकूँ। So these are that kind of trade जहाँ पे आप पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल कर सकते हो।
राइट. सो आई चेक फर्स्ट 15 मिनट्स में मैंने कुछ देखा नहीं, राइट. आई कुड नॉट फाइंड आउट एनीथिंग इन 15 मिनट्स. देयर वाज नो ट्रेड. आवली चार्ट्स देखा मैंने, आवली चार्ट्स पे सपोर्ट पे था. दैट वाज द राशनल कि यहाँ पे सपोर्ट है, आई एम गोइंग टू बी अ बायर सून, राइट. जस्ट टू सी कंफर्मेशन के हायर टाइम फ्रेम में क्या अलाइन हो रहा है, क्या कोई सपोर्ट्स के आसपास में है क्या, सो दैट माय कन्वर्जन इंक्रीजेस. only for that confirmation I checked 2 hourly. There was nothing over there, right. सब कुछ ऊपर नीचे था. I checked 4 hourly chart. वहां पे मुझे दिखा कि वहां पे 4 hourly किचन का जो सपोर्ट एरिया है, that is exactly or that is nearby my cloud support area. So that increased my conviction. उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया और मैंने उस हिसाब से ट्रेड लिया, राइट. सो अभी अगर हम लोग बात की जाए स्टॉप लॉसेस की, राइट, कि अगर 20,990 अगर टूटेगा तो अब 1 घंटे का आप इस्तेमाल करो. एंड यू नो कि बैंक निफ्टी, आपको पता है कि बैंक निफ्टी तो 10 मिनट के अंदर दुनिया बदल सकती है, राइट. सो 1 घंटा का इस्तेमाल करो तो क्या पता 1000 पॉइंट भी गिर जाए. तब क्या करते हो, अगर आप आवली चार्ट लेते हो ना, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, कोई भी एक कैंडल क्लोज अगर आता है इसके नीचे, जैसे मैंने कहा कि इचिमोको में क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, हम लोग लो हाई नहीं देखते हैं, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट. तो अगर 20,990 के नीचे या 21,000 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज आती है, 5 मिनट कैंडल, 10 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल की क्लोज आती है, आई विल एग्जिट. देन आई विल एग्जिट कि चलो मेरा ट्रेड मैंने खत्म कर दिया. तो दिस वे यू, अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट लो पॉइंट पे आपने बाय नहीं किया, अगर आपने ऊपर में बाय किया है, सपोज 21,100 पे, 21,060-70 पे बाय किया, तो आपको 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, आपको उसके सामने 200-300 पॉइंट देखने मिल गया, राइट. तो दिस इज हाउ वी कम आउट विद आइडियाज. अब दूसरी बात क्या होती है कि आप यहाँ पे ले लिया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, अब यहाँ पे और निफ्टी ऊपर चलेगी, ठीक है, निफ्टी और ऊपर चलेगी, बैंक निफ्टी, तो मैं अपने हिसाब से देखते रहूंगा कि 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में किजुन कैसा है. जब तक वो किजुन के नीचे वापस नहीं आता है, मैं इसको राइड करते रहूंगा, राइट. जैसे मैंने किजुन इज योर सपोर्ट, यहाँ पे अभी जो हर्डल है, एक बार इसको ऊपर चला जाएगा तो इट बिकम्स योर सपोर्ट एरिया. तो जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं आ रहा है, मैं उसको राइड करते रहूंगा. सो दिस मॉडल विल नॉट टेल यू व्हाट इज द टारगेट. लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट इचिमोको में कुछ स्टडीज आपको टारगेट्स नहीं बताएंगी, इट्स मोमेंटम. आप राइड करते रहो, राइट. जब तक आपका कोई कंफर्मेशन नहीं आता, आप राइड करते रहो. डू नॉट टेल यू टारगेट्स. फॉर एडवांस इचिमोको इन प्राइस थियरी वगैरह आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे. सो दिस is how I took a trade today. This is how I take trade a lot many times. And if you check my Twitter handle, I always say I play with very small stop losses. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है जब तक ये अच्छा है, बाउंस आएगा. And you can see how many times it has worked. And I have shown you in front of you why something has worked and how it has worked. मुझे एक सबसे अच्छी बात क्या लगी गौरव भाई इसमें, कि ये आपको एक ठहराव दे दे रहा है, ये आपको वेट करने के लिए बोल रहा है कि भाई जिस प्राइस में आएगा तभी ट्रेड करना, नहीं तो अपना बैठ के ऑब्जर्व करो. और आई थिंक यही सब एक नीड ऑफ द आवर भी है कि वो जो मार्केट में ब्लू रेड देख के जो एक कंपल्सिव ट्रेडिंग करने की हैबिट हो जाती है ना, ये सब इंडिकेटर्स में वो कैपेबिलिटी है कि राइट टाइम बताते हैं इंटर करने का, और एग्जिट का भी कोई प्राइस नहीं बताते हैं. वो बोलते हैं कि आप करते रहो इसको जब तक कि मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ. बहुत बहुत सुंदर इंडिकेटर है. जी बिल्कुल. तो इसके ही जैसे आपने कहा कि इसमें आपको राइड करो, एक पैटर्न, एक स्टडी ऐसी होती है जहां पे हम उस पे आपको टारगेट्स देखने मिल सकते हैं. सो अगर आप समय है हमारे पास, राइट, सो मैं आपको वो भी एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बट आई थिंक मैंने आपका आज काफी समय ले लिया है. सो वी कॉल दिस एज अ सी क्लैम, राइट, जहाँ पे हाई कन्विक्शन ट्रेड्स होते हैं. टारगेट्स आपको पहले से पता है, ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, एंड यू ट्रेड दैट. बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, इट इज जस्ट बेसिकली आप डाइवर्जेंस के ऊपर प्ले कर रहे हो, मीन रिवर्जन सॉर्ट ऑफ, आप उसके लिए प्ले कर रहे हो, बट वो भी काफी अच्छी पैटर्न है. तो जब आप मौका देंगे तो मैं जरूर आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा कि सीख लें कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं. एब्सोल्युटली, मैं वो मौका आपसे छीन लूंगा, क्योंकि मुझे आपके साथ एक और वीडियो रिकॉर्ड करना है. और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स है, जिसके अराउंड में एक्सपेंसिव वर्कशॉप्स हो रहे हैं और लोग बहुत चार्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत रिजनेबल काम कर रहे हैं. अभी तो आपने कंसेप्ट को बहुत इजीली समझा दिया, और हमारा वेबिनार भी आपके साथ एक रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी, उस पर भी आपने और डिटेल में इचिमोको के बारे में समझाया था, तो वो वेबिनार भी देखिएगा अगर आप इसका. अच्छा, कोई बात नहीं, आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है, बट दैट्स nonetheless I take the liberty to close this video, and I take your permission that we will record another one. मैं आपसे छीन लूंगा वो मौका, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें थोड़ा और एडवांस इंडिकेटर, हार्मोनिक के बारे में आप प्रैक्टिस भी करते हैं. तो
Thank you so much.